Hello students, today we will discuss numericals of the chapter Forces and Laws of Motion. We have already done its few numericals. Now we will continue the exercise questions. An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both move off together in a same straight line. Calculate total momentum just before impact and also find magnitude of force exerted on the object. So first of all, अब statement में हमें जो जो information given है, let we write all those. Let object of mass is 1 kilogram and it is moving with a speed of 10 meter per second. Then it collides. Let it be m1, it be u1, and it is colliding with a stationary wooden block. Stationary wooden block, तो उसका mass given है 5 kilogram and speed is 0. Now on this basis, अब हमें क्या करना है? As they stick together and move off together in the same straight line, then they are sticking together and moving with the same speed. So let V be the same speed. Calculate total momentum just before the impact. Just initial momentum यानी collision से पहले initial momentum क्या रहेगा? See, initial momentum will be, this is m1 u1 plus m2 u2. So m1 is 1 kilogram, speed is 10 and here u2 0, so it is your 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. अब बताना है आपको फाइंड और कैलकुलेट वेलोसिटी. हियर इन दिस केस कैलकुलेट मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट as well as here we have not to calculate magnitude of force but we have to find velocity of combined object. ये स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, सो आई हैव करेक्टेड. एक तो आपने निकालना था इनिशियल मोमेंटम और आपको बतानी है कि सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी. तो इसके लिए अब आप लेंगे दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, ये था इनिशियल मोमेंटम. अब कॉलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि वेलोसिटी कॉमन है तो दोनों मास कंबाइन स्टिक करके कॉमन स्पीड से मूव करेंगे. अब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है 10 और मास है m1 प्लस m2. दिस इज योर 1 प्लस 5 इंटू v. सो वेलोसिटी विल बी 10 by 6. So it is 5 by 3. So it comes out to be yours. Here if I will just take proper calculations, so it will come out to be 1.67 meter per second. So this is quite simple question. Now next question, an object of mass 100 kilogram is accelerated uniformly from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial and final momentum of the object. Also find magnitude of force exerted on the object. So here question is quite simple. Object of mass 100 kilogram. This is 100 kilogram and it is accelerated from initial speed, it is 5 meter per second, to final speed 8 meter per second and corresponding to it time taken is 6 seconds. तो अब इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू यानी 100 इंटू 5, दिस इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और फाइनल मोमेंटम m इंटू v, सो इट इज़ 100 इंटू 8, दिस इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये तो हो गया फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम. अब आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो कैसे निकालें? फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करने वाला रिलेशन होता है न्यूटन सेकेंड लॉ. तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का डिफरेंस, चेंज ऑफ मोमेंटम इज वेरिंग विद द टाइम. सो इट इज़ हेयर 800 माइनस 500 डिवाइड बाई टाइम इज 6. सो इट इज़ 300 by 6. दिस इज 50 न्यूटन. सो दिस मच फोर्स इज exerted on the object.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टेकिंग, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी रीड स्टेटमेंट. अख्तर, किरण, राहुल वर राइडिंग इन मोटर कार that was moving with high velocity on an expressway. So when an insect hit windshield and got stuck on the windscreen, यानी क्या हुआ कि वो जो बाइक चल रही है, मोटर कार चल रही है, उस पर अब इंसेक्ट विंडशील्ड पर हिट कर गया and got stuck on the screen. अब तीनों स्टूडेंट्स ने, तीनों अख्तर, किरण एंड राहुल हैज़ पॉन्डर्ड द सिचुएशन. दे स्टार्टेड पॉन्डरिंग, माने लुकिंग एट द सिचुएशन, क्योंकि उनको फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो उन लोगों ने फिजिक्स के हिसाब से आंसर देना शुरू किया. किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार. जो किरण ने कहा कि इंसेक्ट ने ज़्यादा मोमेंटम का चेंज सफ़र किया एज कम्पेयर टू मोटर कार. अख्तर सेड that since motor car was moving with large velocity, it exerted large force on the insect. So as a result, insect died. So Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both motor car and insect experience same force and a change in their momentum. यानी सेम फोर्स है और सेम चेंज इन मोमेंटम है. तो कमेंट ऑन द सजेशंस, यानी राहुल, अख्तर एंड किरण में से किसका सजेशन करेक्ट है एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग दैट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट से दैट अख्तर एंड किरण सजेशंस वर रॉन्ग. अख्तर एंड किरण ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा वट देवर सेड कि किरण सजेस्टेड कि इंसेक्ट का चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा था और अख्तर ने कहा क्योंकि मोटर कार ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी तो इसका मतलब वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा. बट दीज टू ऑब्जर्वेशंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. राहुल ने जो कहा दैट इज़ एंटायरली करेक्ट, यानी बिल्कुल इसने करेक्ट फॉर्म में आंसर दिया. क्यों दिया? राहुल का ऑब्जर्वेशन क्या था? राहुल सेड दैट बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन मोमेंटम. भाई देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है. हाँ, डायरेक्शन ज़रूर अपोजिट है. यानी मोटर कार का अगर यहाँ विंडशील्ड है तो यहाँ पर जब इंसेक्ट आया तो दोनों पर इक्वल ही फोर्स लगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट हो गए. सो इट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल. सो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट. नाउ चेंज इन देयर मोमेंटम. भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जब दोनों पे फोर्स भी सेम लग रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मोमेंटम का चेंज, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो सेम. So what you have to write, just you will simply write by Newton third law, action equal to reaction. So forces are equal but opposite in direction. Similarly, change in momentum, यानी magnitude of change in momentum is same but they will definitely they are acting in the opposite direction. क्योंकि यहाँ पर मोटर कार से मोमेंटम मिला, किसको चेंज मिला? इंसेक्ट को, और इंसेक्ट का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, दैट मीन्स ऑन द कार. यानी दोनों को ही मोमेंटम में चेंज हुआ बट दीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो अख्तर एंड किरण वर रॉन्ग इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. उन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ ढंग से नहीं पढ़ा था. सो राहुल हैज़ गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. Now next numerical, how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfers to floor if it falls from a height of 80 cm? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. देखिए डम्बल है, डम्बल का मास गिवन है यहाँ पर 10 किलोग्राम और कहाँ से फॉल कर रहा है, कितनी हाइट से? 80 सेंटीमीटर से. So how much momentum will be transferred to the floor? और acceleration this is given to be downward which is having magnitude 10 meter per second square. तो मोमेंटम ट्रांसफ़र निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना चाहिए कि किस स्पीड से वो मूव कर रहा है. तो इसका मतलब हम सबसे पहले यूज़ करें, इनिशियली ये रेस से स्टार्ट हुआ तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल स्पीड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. तो अप्लाई कीजिए v² माइनस u² इक्वल टू 2as. When you are applying this,
So correspondingly v square minus 0 2 into 10. अब h हाइट आपकी सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करके मीटर में करेंगे. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 16 और ये हो गया 4 स्क्वायर. तो वेलोसिटी कितनी आ गई बिफोर जस्ट रीचिंग द ग्राउंड? इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड. तो अब मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र हुआ? मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा, दिस इज़ m इंटू वी, दिस इज़ 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. जस्ट इट हैज़ बिन गिवन मास. यहाँ पे स्ट्राइक करने से पहले कितनी स्पीड ले रहा है और वही मोमेंटम जो डंबल ने फॉल करते टाइम अटेन किया, वही मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ फ्लोर को. Now this is the question we are taking from additional exercise. Slightly थोड़ा difficult concept होता है, hot questions के अंडर ले सकते हैं आप इसे. So I am covering it also. देखिए one table is given here. This is the table is the distance time table of an object is shown where time seconds में है, अलग अलग instant 0 से 7 second and correspondingly distance given है. Distance 1, 8, 27 and so on. Actually there was some correction in the statement, so I have just corrected it. Here distance is 0, 1, 8, 27 and so on. अब देखिए क्या पूछा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सेलरेशन. देखिए टाइम एंड डिस्टेंस आपको टेबल फॉर्म में दिए हैं और अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 1 इज़ 1, 8 2 क्यूब की फॉर्म में नज़र आ रहा है, 27 3 क्यूब नज़र आ रहा है, 64 4 क्यूब नज़र आ रहा है, 125 5 क्यूब एंड सो ऑन. यानी ये टाइम के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन टाइम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम द टेबल दैट डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट इज़ वेरिंग विद क्यूब ऑफ टाइम. कैसे देखा हमने? टेबल को देखा, टेबल को देख के हमें पता लग रहा है 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 raised to the power 3. तो इसको अगर हमने t की वैल्यू 2 ली तो इसको लिखेंगे t क्यूब. तो वही चीज़ हमने यहाँ ली है कि अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो टाइम के क्यूब के इक्वल है. ये रिज़ल्ट हमें इस टेबल को देख के पता चला. अब देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर हम इक्वेशन लेते हैं s इक्वल टू यू टी, यानी यहाँ इसको देख के हमें पता चलता है s प्रोपोर्शनल टू 2 raised to the power 1. वो किस केस में होता है? ये कौन सी इक्वेशन है? बेसिकली ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन माने क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है का मतलब एक्सीलरेशन 0 है. अब ये इससे तो मैच नहीं कर रही क्योंकि ये तो टी क्यूब होना चाहिए जबकि ये टी की पावर 1 पे की है. अब अगर आप एक इक्वेशन लेते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब उस केस में अगर हम लें यहाँ पर s प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, यानी अगर हम लें कि बॉडी इज स्टार्टिंग सो करस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम कितना है? टी की स्क्वायर के इक्वल. अब ये जो इक्वेशन है हम कब लगाते हैं? जब भी कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशंस में हमेशा गिवन होती है. तो यहाँ पर इसका मतलब ये कब हम यूज़ करते हैं, ये इक्वेशन कब आती है? व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तो करता है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यानी अभी हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं किया, अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं उसी के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सेम लेके चलते हैं क्योंकि जो हमें स्टेटमेंट में गिवन होती है न्यूमेरिकल में वही यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? s प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, यानी कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें? बेसिकली एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है और ये टी क्यूब है यानी ये फैक्टर बढ़ रहा है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म. सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब फोर्स क्या होता है? m इंटू ए. जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो आप कहेंगे फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो फोर्स acting on the body must be increasing with the time. Why? Because acceleration is going on increasing.
सो दिस इज़ अ जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ का S इक्वल टू यू टी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये इक्वेशन कब लगती है, किस कंडीशन में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और टी क्यूब बढ़ रहा है यानी टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम के साथ साथ जब ये बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो उससे आगे क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अब टी क्यूब है तो इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। इन 11th क्लास व्हेन यू विल डू इट देयर विल बी सम डिफरेंट मेथड, डायरेक्टली कैलकुलेशन आ जाती है, वहाँ हम आंसर कर पाते हैं, बट आपके लेवल पर अभी हम इसी लेवल से एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kilogram at uniform velocity along a level road. 2 persons are pushing a certain mass, a motor car जो uniform speed पे move कर रही है। Same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. यानी उसी मोटर कार को अगर 3 persons पुश करते हैं तो उस केस में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ एक्सेलरेशन है। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश मोटर कार, यानी हर पर्सन कितना फोर्स अप्लाई करें, एवरी पर्सन ने जो फोर्स लगाया वो क्या है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। सी let we take that each person exerting the same force, so each of the person is pushing the motor car with the same force। तो अब यहाँ पर mass of motor car given है 1200 kilogram, it is given to be 1200 kilogram। अब each person is exerting a force, यानी जब force of F ले लेते हैं हम, अब क्या है, इनिशियली 2 persons are pushing it, यानी अगर ये एक कार है और इसको 2 persons force लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल अप्लाइड फोर्स हो गया F प्लस F 2F। तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी सिस्टम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो एज दिस पुश गिव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू द मोटर कार। सो अब ध्यान से देखिए कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इट मस्ट बी अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मोटर कार एंड द रोड, यानी एक तरह से हमें मेजरमेंट मिल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स। क्यों, क्योंकि अब इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है तो अप्लाइड फोर्स एनेबलिंग द बॉडी द कार टू मूव विद द सेम स्पीड, सो फ्रिक्शनल फोर्स भी इक्वल हो जाएगा 2F के, क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से, मान लो अप्लाइड फोर्स ये है 2F, अब फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता तो इसका एक्सेलरेशन होता इस कार का, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इस केस में अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें मोटर कार सेम स्पीड से मूव कर रही है। अगर अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी में या सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जब 3 persons उसी कार को मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी 3 persons when push the car तो फोर्स कितना लगेगा, देन इट विल बी F प्लस F प्लस F, दिस इज 3F। ये तो अप्लाई किया। अब ये देखिए यहाँ पर 3F फोर्स तो यहाँ से लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा इसमें। अब वो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, दिस फ्रिक्शन फोर्स, मान लो मैं इसको F डैश ले लेती हूँ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस होगा, तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। हम ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम में देखिए यहाँ पर जितना अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगेगा तो इन दोनों का डिफरेंस ही एक्सेलरेटिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ कहेंगे m इंटू ए इक्वल टू 3F माइनस F डैश। F डैश क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और F डैश की वैल्यू कितनी है 2F, तो ये हो जाएगा 3F माइनस 2F इक्वल टू m इंटू ए, और a की वैल्यू गिवन है तो f कितना हो गया m इंटू ए। मास गिवन है 1200, एक्सेलरेशन भी गिवन है 0.2, इसको मैं लिख देती हूँ 2/10, तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी योर्स, दिस इज 240 न्यूटन, दिस कम्स आउट टू बी 240 न्यूटन।
देखिए जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसको अप्लाई करना है, तभी इनको हॉट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो मेन पॉइंट जो समझना है कि कभी भी कोई बॉडी, इसका की पॉइंट क्या है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस केस में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब जब 3 पर्सन्स इस बॉडी को मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऑटोमेटिकली लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की क्योंकि 3F लगता है तो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तब एक्सेलरेशन है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो था, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस अप्लाइड फोर्स से माइनस होगा, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आप इसमें गलती क्या कर देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते। तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Now next question, I am taking a hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail। यानी यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मान लो एक नेल है, हैमर इस पे हिट कर रहा है। The nail stops the hammer in the short time of 0.01 seconds। So what is the force of nail on the hammer? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है। मास ऑफ हैमर गिवन है 500 ग्राम, जिसको मैं अभी किलोग्राम में ही कर लेते हैं क्योंकि आगे एंट्रीज आपकी उस हिसाब से यूज़ की हुई है। दिस इज़ 0.5 किलोग्राम। और किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये नेल पर हिट कर रहा है। अब नेल पर हिट करने पर नेल जब कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाती है, यानी कंप्लीट अंदर एनग्रेव्ड हो गई। तो अब ये क्या हो गया, रेस्ट पर आ गई। तो रेस्ट पर आ गई तो इसका मतलब इसकी फाइनल स्पीड हो गई 0, यानी नेल स्टॉप्स द हैमर। स्टॉप्स द हैमर कि अब जब नेल अंदर चली जाएगी तो उसके बाद हैमर भी तो रेस्ट पर आ जाएगा। तो अब उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर। तो बेटा देखिए फोर्स F क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले दिस इज़ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट की। तो अब यहाँ पर मास है 0.5 और फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 50, टाइम है 0.01। तो जस्ट कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए। ये हो गया 50, दिस इज़ 1/100। तो यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं इट कम्स आउट टू बी, नेगेटिव साइन है तो ये बाहर आ जाएगा। दिस इज़ -2500 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग ऑपोजिंग फोर्स। सो फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, यानी इतना ही फोर्स हैमर लगा रहा है नेल पे, और नेल कितना फोर्स लगा रही है, दिस इज -2500, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दैट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक्शन कितना हो रहा है 2500, यानी फोर्स ऑफ हैमर ऑन द नेल है इतना 2500 न्यूटन, और नेल कितना लगा रहा है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, सो इट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग द सेम फोर्स। सो नेल इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 2500 न्यूटन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a motor car of mass 1200 kilogram is moving along straight line with uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force। एक मोटर कार मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, सडनली कोई फोर्स लगता है जिससे स्पीड रिड्यूस हो जाती है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले व्हाट वी आर टेकिंग, मास ऑफ मोटर कार इज 1200 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड ये गिवन है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइम सेकेंड्स में गिवन है। तो इसको करने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1000 अपॉन 3600 को डिवाइड करके आता है 5/18। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी जब स्लो डाउन हो गई है तो फाइनल स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। फर्दर हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड दोनों आपके पास हैं एंड टाइम इज़ गिवन टू बी 4 सेकेंड्स, यानी स्लो डाउन कितने टाइम में होती है 4 सेकेंड्स में। नाउ कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा,
v minus u upon t. So 5 minus 25 upon 4 minus 20 upon 4, this is minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी स्पीड रिड्यूस हो रही है तो एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है रिटार्डेशन. So now what will be the acceleration? This we have taken change in momentum. Change in momentum होगा mv minus mu. तो मास है 1200, फाइनल स्पीड है 5, इनिशियल स्पीड है 25. तो सॉल्व कीजिए, ये हो गया 1200 इंटू माइनस 20, 1200 इंटू माइनस 20, ये हो गया, दिस इज योर minus 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. सो अब क्या बताना है आपको? फोर्स रिक्वायर्ड. तो बेटा फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स इज F इक्वल टू m इंटू ए. 1200 इंटू एक्सीलरेशन इज -5, तो ये आ गया -6000 न्यूटन. सो अगेन negative sign is indicated that force is acting and it is in the opposing the motion. Then force is opposing, acting in the opposite direction. भाई बॉडी की स्पीड रिड्यूस हो रही है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो वही इंडिकेट कर रहा है ये नेगेटिव साइन. So in this question just we have to be carefully applying this result for finding acceleration, then change in momentum, simply formula based, and then Newton's second law से force applied. Now one last question I am taking of this additional exercise. This is conceptual kind of question. A large truck and a car both moving with the velocity v, with the velocity of magnitude v, have head-on collision. दोनों टकराती हैं and both of them come to halt. Halt माने रेस्ट पे आ गई. After that, if the collision last for 1 second, यानी कहा कि जब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, जब ट्रक और कार कॉन्टैक्ट में आई, कोलाइड हुई, वो 1 सेकेंड के लिए हुआ. विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट? भाई ट्रक और कार दोनों का अलग अलग मास है, तो पूछ रहे हैं किस केस में ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लगेगा. सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम? दोनों में से मोमेंटम का चेंज किसका ज़्यादा होगा. थर्ड है विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड वाई इज कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज दैन ट्रक? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. जैसे हमने 2 प्रॉब्लम्स अभी बीच में की थी अख्तर वाली, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कहा था कि चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स सेम होता है, वो इसी से ही रिलेटेड है. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों ही कार एंड ट्रक आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v. दोनों का मैग्नीट्यूड v है. नाउ व्हेन दे कोलाइड, विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट? तो बेटा सबसे पहले बाय एक्शन एंड रिएक्शन, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, सो force of impact will be same. This is very important point. Now second point, that which experience greater change in momentum? तो बेटा change in momentum of both truck and car will also be same. So here there will not be any difference. Change in momentum will be same for both the cases. Now third point, which vehicle experience greater acceleration? यहाँ हम आंसर करेंगे. हमें मालूम है कि मास ऑफ ट्रक, चाहे आपको गिवन नहीं है, बट इट इज़ मोर मैसिव, जिसका मास ज़्यादा होता है कार के मास से. तो बेटा एक्सीलरेशन और फोर्स को रिलेट करने वाला रिलेशन है F इक्वल टू एम ए. तो मास और एक्सीलरेशन को रिलेट कर रहे हैं फोर्स से. अब दोनों पर जब फोर्स क्या लग गया, सेम लगा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. या आप यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो F इक्वल टू एम है, तो A क्या हो गया, F अपॉन एम. अब कह सकते हैं क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम है, इसीलिए एक्सेलरेशन सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पे. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा. तो मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विल बी लेस देन दैट ऑफ कार. इसका मतलब कॉलिजन के बाद acceleration of car will be more. Why? Because its mass is less as compared to truck. Now the fourth question, why is car likely to suffer more damage? तो देखिए ये क्वेश्चन भी थर्ड पार्ट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि इस कार का मास लेस है एज कम्पेयर टू ट्रक, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ट्रक से उसका बहुत ज़्यादा है, कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा है. सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑफ कार इज more, so acceleration is more. That's why
car suffer more damage? More damage. इसका आंसर क्यों लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे because its acceleration of car is more than that of truck, which is again depending upon that mass of car is less as compared to truck. यानी ये दो रीज़न सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को आंसर करने के लिए. सो दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच वी हैव डन, जिसमें दो बॉडीज़ टकरा रही हैं. कोई भी मास हो, कोई भी टाइम के लिए टकराएं, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई बॉडी जब कोलाइड करती हैं तो दोनों पर सेम फोर्स लगेगा, सेम चेंज इन मोमेंटम आएगा. हाँ, जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा डैमेज भी उसी का ही ज़्यादा होगा. That's all for today. Today we have completed all the numericals of NCERT exercise. So now just have a look on all the questions. Now try to solve by yourself and solve extra questions also. Thank you. Have a nice day.